Hello dear students. Yesterday we have seen the equilibrium of rounded bodies, yani spheres, circles or balls. Now here we will see the equilibrium of rod. Okay, here is the problem given. A joist of length 4 meter and weight 200 Newton is raised by pulling rope as shown in figure. Determine tension T induced in the rope and reaction at A. Okay, so we have to find out the tension, reaction at A. Here the reaction will be like this. Okay, it will be AX and it is AY. So we have to find out AX and AY. Okay, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है. Now we will draw the ABD of this joist. Okay, here is the ABD. See, the length of this joist is 4 meter. Okay, here are the reaction AX and AY. This angle is given 45 degree. The weight is given 200 Newton and this is tension. This is vertical, this is horizontal, this is vertical, but this is inclined. Okay, so we have to first find out the angle of this tensile force with the horizontal. So we have to find out this angle. See, this complete angle is 45. Okay, this complete angle is 45 and this is 25. Now we have to find out this angle. Okay, we have to find out this angle क्योंकि horizontal ये है और T का horizontal के साथ आपको ये angle find करना है. So what will be this angle? 45 minus this is 25. Okay, 45 minus 25. So it will be 20. This is 20. Now we will resolve this T force into two component. This is T cos 20 and this is T sin 20. T cos 20 and T sin 20. Okay, now here there are number of forces 1 2 3 4 5. Okay, so we will apply the equilibrium conditions. When the system is concurrent and coplanar concurrent, then there will be only two conditions applied. Summation fx is equal to 0 and summation fy is equal to 0. But the force system is coplanar but not concurrent. Okay, it is non-concurrent force system. Okay, here at this point here two forces are acting. At this point 200 Newton is acting and here these two forces are acting. So it is non-concurrent force system, and for the non-concurrent force system there are three equilibrium conditions. Summation fx is equal to 0, summation fy is equal to 0 and sum of moment at any point is equal to 0. Okay, so here we will apply these three equilibrium condition. First we will apply सम ऑफ मोमेंट. कभी भी तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर आपको अप्लाई करनी है तो सबसे पहले ये कंडीशन अप्लाई करने की, फिर बाद में ये और ये. अगर ये दो रहे तो फिर पहले ये फिर ये. कौन सी भी कंडीशन कभी भी अप्लाई करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस स्टेप्स और टाइम सेव होता है आपका, इसलिए हम पहले ये कंडीशन यूज़ करेंगे. सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0. एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0. So here at this point moment of these two forces will be 0. 200 into मोमेंट का जो वीडियो है आपको फिर से जाके देखना पड़ेगा अगर आप मोमेंट भूल गए हो तो. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे मैंने फिंगर रख दिया, यहाँ पे 200 न्यूटन फोर्स है, यहाँ पे पेन रख दिया. ओके, दिस इज 2 meter. How this is 2 meter? Because weight
ऑलवेज एक्ट एट द सेंटर. ये 4 मीटर है, ये 2 मीटर पे यहाँ पे सेंटर पे ये 200 न्यूटन फोर्स एक्ट होगा. ठीक है. सो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? 2. हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा? cos 45. और ये वर्टिकल है, ये 2 sin 45. सो दिस इज फिंगर एंड दिस इज force. What is the distance between force and my finger? It is 2 cos 45. 2 cos 45. कैसे जा रहा है वो? A की तरफ. कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज. प्लस. ठीक है. देन t sin 20. t sin 20. Okay. Here is my finger. Here is the force. What is the distance between my finger and this pen? It is, see, this is hypotenuse 4. 4 cos 45. 4 cos 45. Okay, so it is clockwise. Plus. Now t cos 20. T cos 20. See, this is pen and this is finger. So what will be the distance? This is, ये जो distance रहेगा ये रहेगा हमारा 4 sin 45. ठीक है. फिर t cos 20 इंटू, ओके, पेन और मेरे फिंगर के बीच में कितना है? देखिए, फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल, मैंने बहुत बार बताया, जब आप मोमेंट कैलकुलेट करोगे, अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल रहा तो आपको डिस्टेंस वर्टिकल लेना पड़ेगा. अब यहाँ पे फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस क्या है? हॉरिजॉन्टल है. ठीक है. डिस्टेंस क्या है? हॉरिजॉन्टल है. तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस, फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस क्या आएगा? वर्टिकल. 4 sin 45. ठीक है. अभी ये t cos 20 a की तरफ कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये आएगा माइनस इज इक्वल टू 0. नाउ वी विल डू द कैलकुलेशन. टू 200 इंटू 2 400 cos 45. इट इज 282.84 प्लस this is 4 sin 20 cos 45. it is plus 0.96t minus 4 sin 45 to cos 20, 2.65t is equal to 0. now this will be माइनस, ये माइनस 1.69t. ठीक है. ये माइनस है और ये प्लस है. ठीक है. अगर आप उसको उस साइड लेके जाते हो तो ये क्या आएगा? प्लस हो जाएगा. 282.84. 282.84 डिवाइड बाय दिस इज 1.69. सो द वैल्यू ऑफ t विल बिकम 166.58 न्यूटन. 166.58 Newton. Okay, now we will find the x and ay. Summation fy is equal to 0. Sorry, ये ay रहेगा और ये ax रहेगा. Summation fy is equal to 0. ay minus 200 minus t sin 20 is equal to 0. We'll find the value of ay. ay is 200 plus t की वैल्यू है 166.58 sin 20. 200 plus 166.58. (166.58) sin 20. ay is 256.97 Newton. Then we will find ax. This summation fx is equal to 0. Summation fx is equal to
0. Ax is equal to t cos 20. Value of t is 166 cos 20. Sorry, 166.58 cos 20. 166.58 cos 20. It is 156.53 Newton Ax. So RA, reaction at A will be Ax square plus Ay square. So it is Ax is 156.53 square plus Ay is 256.97 square. So RA की वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ RA विल बी 300. RA is 300.89 न्यूटन. ठीक है, ये देखिए आंसर्स निकाले हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट है एफबीडी ड्रॉ करना. फिर एफबीडी के बाद आपको 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करते आने चाहिए. मोमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन यूनिट नंबर 3 एंड 4. ठीक है, यूनिट नंबर 3 और 4 में 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस छोड़ के और कुछ भी नहीं है. स्पेस फोर्स में थोड़े इक्विलिब्रियम कंडीशंस बढ़ जाते हैं. ठीक है, बहुत ध्यान से आप मोमेंट की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. मोमेंट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना ही चाहिए. कैसे भी क्वेश्चन पूछा तो मोमेंट, कैसे भी मोमेंट पूछा तो आपको मोमेंट कैलकुलेट करते आना चाहिए. ओके, सो दिस इज वन प्रॉब्लम. विल टेक अनदर प्रॉब्लम. ओके, हियर इज अनदर प्रॉब्लम. द वेट ऑफ साइकिल is 500 Newton, which is act at the center of gravity G. Here is the G point. Okay, as shown in figure. Determine the normal reaction at A and B. Okay, यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है. इस दोनों पॉइंट पे हमको नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करनी है. सो सबसे पहले हम साइकिल की एफबीडी ड्रॉ करेंगे. तो क्या आएगा एफबीडी में? साइकिल का वेट जो जहाँ पे उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. कहाँ पे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? A से 0.5 मीटर पे है. और यहाँ पे 0.7 मीटर पे है. ठीक है, अभी नॉर्मल रिएक्शन ए पे, ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा, इसको हम ए वाई कहेंगे. और बी पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इसको हम कहेंगे बी वाई. और वेट जो है साइकिल का वो एक्ट होगा डाउनवर्ड, विच इज़ 500 न्यूटन. ठीक है, देर इज ओनली वर्टिकल फोर्सेस, सो summation fx will be 0 and there will no need of to apply this summation fx is equal to 0. ओके, एक भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं तो summation fx is equal to 0 अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है. सिर्फ summation fy और मोमेंट आएगा. दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट. सो सबसे पहले हम मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस लेंगे. सो इसमें 500 इंटू फोर्स हॉरिजॉन्टल है, सॉरी फोर्स वर्टिकल है. डिस्टेंस क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल आएगा 0.5. कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज. अभी बी वाई इंटू फोर्स वर्टिकल है, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल आएगा, ये आएगा 1.2. टोटल डिस्टेंस इज 1.2. कैसे जा रहा है वो? ए की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, इज इक्वल टू 0. फ्रॉम दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी वाई. लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वाई. 500 का हाफ आता है 250 डिवाइड बाय 1.2. इट इज़ 208.33 Newton. Now we'll take another equilibrium condition. Summation Fy is equal to 0. Ay plus By is equal to 500. Right? Ay calculate नहीं किया है. Ay plus By is 208.33 is equal to 500. So Ay is equal to 500 minus 208.33. It is 291.67 Newton.
ओके, दिस इज द आंसर। वेरी इजी प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम पूछा हुआ है दिसंबर 19 में 7 मार्क्स के लिए। अभी इसके पहले जो प्रॉब्लम था वो भी अगस्त 22 में पूछा था। बहुत इजी प्रॉब्लम है। बस ये दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई किए हैं। समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड मोमेंट एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम बीम की थ्योरी पढ़ेंगे और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।